Okay. ठीक है, so we'll start. Rest of them will join. Share screen. Okay, so in the last lecture we have studied something about the material editor. Okay, how we can use the materials, what are the materials, what are different types of textures available. Okay, जो basic textures थे उसके अंदर available that I have shown you. Okay, how you can apply those materials and how you can create any of the sphere. Okay, these are three spheres. I will apply different materials on this. Shortcut is M. ठीक है, M प्रेस करोगे तो आपका मटेरियल एडिटर ओपन होगा. ठीक है, when you will press M, it will open the material editor. Okay, this is a default, or this is a compact material editor. And next is a slate material editor. Okay, there are two types of material editors, for beginners and for the advanced. So in this, different types of materials are present. Utilities, you will have different types of modes, compact material editor and slate material editor. Get materials, make preview, show materials in reports, shaded materials, update active material slots, navigation. Okay, these are different types of materials. X is the shortcut for changing the cycles. ठीक है, backlight रहेगा, backlight on करना रहेगा, background on करना रहेगा. These are different types of shortcuts which you can see. ठीक है. So first, what I will do, कितने materials लेता हूँ. ठीक है, I will drag and drop this first material on this sphere, second material on second sphere, third material on third sphere. ठीक है. This is a simple way to apply materials on any of the object. Okay. Now, I will select the first material. In this, we will have the standard option. Okay, now this is standard and default material. If you just want to change the colors, select the diffusion. Okay, diffuse is the value of color. मतलब diffuse color अगर आपको choose करना है, basic color. Diffuse is the basic color which you are going to choose for your material. ठीक है.
I'll first choose the blue color. Okay, I'll start with the red. Okay. Red, material 2. Material 2, green, and third is blue. ठीक है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, दीज आर द कलर्स. ठीक है, ये कलर्स आप लोग ऐसे टाइप से अप्लाई कर सकते हो. बट इफ यू वांट टू अप्लाई मटेरियल्स और अप्लाई टेक्सचर्स, then you have to switch to the different presets. ठीक है, डिफरेंट प्रीसेट्स हैं यहाँ पे. स्टैंडर्ड के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, you will get these custom presets in the software. ठीक है, custom presets are present in the software. In this you will have different materials. ठीक है, physical materials, blend, composite, direct textures, double shaded, instant paint, matte shadow, morpher. ठीक है, ये सारे materials है. इसके अंदर I will show you the architectural materials. ठीक है, these are the scanline materials which we are going to render. Architecture material के ऊपर अगर डबल क्लिक करोगे, then it will apply an architecture material, and then we have the different architecture materials as the templates. यहाँ पे सारे templates है इसके. ठीक है, फैब्रिक चाहिए, फैब्रिक होगा, ग्लास, ट्रांसलूसेंट, आइडियल डिफ्यूज, विजनरी, मेटल, मेटल ब्रश्ड, मेटल फ्लैट, पॉलिश्ड, मिरर, पेंट फ्लैट. ठीक है, एरो से भी आप लोग चेंज कर सकते हो मटेरियल्स. ठीक है, एक बार क्लिक कर दो वहीं पे, ऑटोमेटिकली मटेरियल्स ऐसे चेंज हो. ठीक है, for default I will apply ceramic tile पे. ठीक है, ceramic tile glazed, ये वाला मटेरियल अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर और इसके ऊपर. ठीक है, now I can change the diffuse color again. As I have applied a new material and new template, then I have to again change the color of that template. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे शाइन आ गया है, ये डिफॉल्ट है. यहाँ पे मैंने आर्किटेक्चर मटेरियल अप्लाई किया है. ठीक है, so this is the difference between the standard materials and architectural materials. ठीक है, also there are physical materials, there are V-Ray materials, there are Arnold materials. Different render engines have the different materials. ठीक है, this architectural is for scanline renderer. scanline render अगर आप लोग देखोगे तो उसके अंदर आपको ये सारे टाइप के मटेरियल्स मिलेंगे. ठीक है, now in this जो भी आप लोग यहाँ से चूज करोगे उसके ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखा है, फिजिकल क्वालिटीज. ठीक है, these are the colors which we have changed now. diffuse map, यहाँ से आप लोग इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, diffuse map, what I will do, I will apply HDRI. ठीक है, as I have explained you already what is an HDRI. ठीक है, high dynamic range image which when connected from all of the sides creates a continuity in the image. ठीक है, it is a 360 image which we connect, it can create a continuity in the form. ठीक है, so what I will do, I will download this image. Okay, this is also one of the HDRI.
ठीक है, डिफ्यूज मैप, नो मैप, यहाँ पे क्लिक करो, बिट मैप, सॉरी धीरे धीरे करता हूँ। ठीक है, से डिफ्यूज मैप, आई डोंट हैव एनी मैप्स ओवर हियर। ठीक है, यहाँ से आप लोग सिर्फ कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस अप्लाई कर सकते हो। डिफ्यूज मैप इमेज इज द डिफ्यूज कलर, कलर के ऊपर वो इमेज अप्लाई हो जाएगा। शाइनीनेस, शाइनीनेस के लिए अगर आपको कुछ इमेज चाहिए तो 90% इज ऑफ शाइनीनेस। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी 0 0 रहेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अगर इंक्रीज करोगे तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सी, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज ट्रांसपेरेंसी, शाइनीनेस, ट्रांसलूसेंट, उसके अंदर उसके ऊपर जो शाइन रहेगा दैट विल इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ शाइन। ठीक है, ट्रांसलूसेंस नहीं चाहिए मुझे। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, अभी ये सारे जो है ये दीज आर द फिजिक्स टर्म्स। ठीक है, जो भी आपको ये टर्म्स दिख रहे हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, मटेरियल्स का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे रहता है, we have some of the fixed amount of index of refraction for fixed materials। ग्लास का इंडेक्स IOR अलग रहता है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज IOR, या फिर IR हम लोग बोल सकते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, IOR फॉर द ग्लास इज डिफरेंट, वाटर का डिफरेंट रहेगा, डायमंड का डिफरेंट रहेगा, मिरर का डिफरेंट रहेगा। ठीक है, एयर का डिफरेंट रहेगा, विंड का डिफरेंट रहेगा। ठीक है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, as the light refracts through it is called as an index of refraction। ठीक है, पास जो भी होता है उसके अंदर से लाइट, so that is a type of index of refraction। luminescence, luminance, सॉरी luminance, ठीक है, luminance मतलब क्या रहेगा, उसका शाइनिंगनेस कितना रहेगा, या फिर ग्लो। ठीक है, ग्लो कितना रहेगा वो आप लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लीन करना है पूरा क्लीन भी कर सकते हो सब मटेरियल्स। देन वी हैव द स्पेशल इफेक्ट्स। ठीक है, स्पेशल इफेक्ट्स के अंदर बम्प, डिस्प्लेसमेंट, इंटेंसिटी एंड कटआउट, these are different types of special effects which you can apply। advanced lighting, emit energy, luminescence, luminance। ठीक है, यहाँ पे जब आप वैल्यू इनपुट करोगे तो यहाँ पे आपको luminance का वैल्यूज एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सुपर सैम्पलिंग रेट, यूज ग्लोबल सेटिंग्स, सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स, अभी आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा मैं। ठीक है, फर्स्ट स्टडी हाउ यू कैन अप्लाई कलर्स एंड हाउ यू कैन अप्लाई द मटेरियल्स। ठीक है, so I will apply a diffuse map। click on this, you will have different types of default maps। ये सारे टेक्सचर्स हैं इसके अंदर डिफॉल्ट। ठीक है, वुड, टाइल्स, स्वेल, सब्सटेंस, फ्लैट, स्पेकल, स्मोक, आरजीबी टिंट, शेप मैप। ठीक है, पार्टिकल मार्बल, पर्ल मार्बल, पार्टिकल एज, आउटपुट, नॉर्मल बम्प। ठीक है, मास्क, मार्बल, ग्रेडियंट, टेंट, चेकर। ठीक है, जैसे कि आपको चेस बोर्ड का वो एग्जांपल वगैरह दिखाया था मैंने, चेस बोर्ड के अंदर कैसे है to apply checker material of that board। Okay, so that you can use different types of default textures, but if you want to apply your own texture, download a texture, you have to create a texture, then you have to go for the bitmap। ठीक है, select bitmap, select the path, where have I downloaded। okay, it is a JIF file।
Okay, JPEG image. Again, go to this. New, open. Okay. See, once you apply the map, you will get these options. अभी यहाँ पे टाइलिंग वगैरह सब एडजस्ट कर सकते हो आप लोग, यूवी टाइलिंग, ठीक है, यूएनवी। अभी ये सारे टर्म्स आपको माया के अंदर मैंने क्लियर किए हैं, ठीक है। व्हाट इज यू एक्सिस, व्हाट इज वी एक्सिस, UVW axis we apply for textures and XYZ are for the objects, ठीक है, 3D objects। तो इसी टाइप में आपको मैक्स के अंदर भी सेम टाइप से यूज करना है, ठीक है। we have the texture coordinates, टाइलिंग में आप इसको सब डिफॉल्ट रखो। इसको कब चेंज करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। no need to change as it is an HDRI and spherical image। now here you have an icon, ठीक है। इस आइकॉन के ऊपर जूम करो, show shaded material in the viewport, show shaded material in the viewport, ठीक है। मतलब viewport के अंदर आपको ये shaded material दिखाई। what I will do, click on this, okay। See, now this is not a proper HDRI, so we can see this line। अगर प्रॉपर आप लोग HDRI इमेज डाउनलोड करते हो, then you will not get to see this line, ठीक है। See, यहाँ पे इसे लाइन आ गया है, मैप, ठीक है। HDRI image do not have these keys or lines, they connect from all of the points in spherical form, ठीक है। Again press M, select the material, bitmap parameters। यहीं पे अगर आप लोग जाओगे तो you will get the bitmap path। इस पाथ को select करो, full map, okay। See, now this is a full map। यहीं पे भी आपको ऐसे लाइन वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगी, because this is a complete straight line map, not see the connection also anywhere। ये रेजोल्यूशन कम है इसलिए ऐसे दिख रहा है, ठीक है। Okay, so in this way you can apply textures on any of the image, or sorry, on any of the material। टेक्सचर्स हम लोग मटेरियल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। टेक्सचर इज एन इमेज फाइल, तो इमेज फाइल हम लोग कोई भी मटेरियल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, सो दिस इज द सर थर्ड वन। हाँ सर, वो माया में जो आपने कीबोर्ड बनाने के लिए बोला है, तो सेम हाँ हाँ प्रोसेस यूज करके अपन कीज लोड कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं ना। ये माया के अंदर तो मैंने मटेरियल का अलग से लेक्चर लिया था ना उसका, उसमें प्रोसेस अलग था ओके मटेरियल अप्लाई करने का। Just I ओके am saying you that UVW, these are the axes and coordinates which you can use for the textures in both the softwares, ठीक है। उसका जो प्रोसेस है माया के अंदर, जो प्रोसेस है, you have to select the material, you have to select the material, then you have to create it in Photoshop and then you have to apply it, ठीक है। अगर वो वाला असाइनमेंट आपको जमना जमरा नहीं है, फिर टेक्सचरिंग का पार्ट आपका बाकी है, then I can explain you how you can do it, ठीक है। You have to combine those materials and combine those parts and then you can apply, ठीक है। उसके अंदर मैपिंग का कोऑर्डिनेट्स आपको दिखाया था, ऑटोमेटिक मैपिंग, प्लेनर मैपिंग एंड स्फेरिकल स्फेरिकल मैपिंग एंड सिलिंड्रिकल मैपिंग। ऐसे 4 टाइप के मैपिंग टेक्निक्स थे उसके अंदर माया के अंदर, जो मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। उसके अंदर से हम लोग ऑटोमेटिक मैपिंग या फिर प्लेनर मैपिंग ऐसे टाइप की मैपिंग्स यूज करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। Now I will not need a syllabic tile test, ठीक है।
सिरेमिक टाइल मटेरियल नहीं चाहिए रहेगा। इस आइकॉन को क्लिक करोगे तो यू विल रिटर्न टू द टेम्पलेट्स पार्ट। ठीक है, ये वाला आइकन, इसको क्लिक करोगे तो यू विल सी द मटेरियल इन द व्यू कोड। ठीक है, अगर फिर से मैप के इसमें जाना है तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस मैप। ठीक है, फिर से इसके डायमेंशंस के अंदर आप लोग जा सकते हैं। अगेन क्लिक ऑन दिस, यू विल रिटर्न टू द टेम्पलेट्स पार्ट। ठीक है, ये आइकॉन्स है, these are different types of icons for reset the material to default settings। ठीक है, अगर इसको डिलीट कर दूंगा मैं तो पूरा मटेरियल डिलीट हो जाएगा। इसको डिलीट करता हूँ, affect material map both the scene in them editing salon। see this material is now reset। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये अप्लाई किया हुआ है, you will not see the just render it। अब यहाँ पे इसको चेंज करना है मुझे, want such shininess, फैब्रिक का ही डालता हूँ। see वैसे आएगा। glass glass material। ठीक है, see this is a fabric material and this is a glass material, difference between two materials। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अभी टेक्सचर सेम ही रहेगा, जस्ट आई एम चेंजिंग द मटेरियल्स। ठीक है, फ्रॉम दिस टेम्पलेट्स अगेन आई विल क्रिएट अ कोलोन रेंडर फ्रेम विंडो। इसको सेपरेट रखता हूं मैं। we have the glass, we have the fabric, this I will change to metal। I will again run this। this is glass, fabric, I will run this। this is a metal। glass में, metal में there are differences between each and every material, you have to understand that। कोई मटेरियल किसी को भी अप्लाई कर दोगे तो भी चल जाएगा, इट इज नॉट लाइक दैट। just try to understand the use of these materials। टेम्पलेट्स अलग अलग क्यों उपयोग करते हैं? According to the requirement, you have to change the material types and texture types। ठीक है, clear how you can apply the materials and how you can apply the textures। anyone have any doubts on this, please ask। उसके बाद मैं फिर आगे का पॉइंट कंटिन्यू करता सर, हूँ। हाँ, आपने जो असाइनमेंट दिया है हाउस मॉडल का, तो वो सेम वैसा ही बनाना है हाउस की, समझो मॉडल नहीं बनाया, सादा भी बनाया तो भी चलेगा? हाउस मॉडल का अभी उसके अंदर क्या दिया है आपको इंस्ट्रक्शंस? लैब बुक में इंस्ट्रक्शंस क्या है, रीड कर सकते हो क्या आप? टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मॉडलिंग, टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग टेक्निक्स। इसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं? क्रिएट एन एक्सटीरियर मॉडल ऑफ योर चॉइस। इसका मतलब क्या होता है? विद प्रॉपर टेक्सचर्स आपके एंड मन से लाइट्स। कोई भी। हाँ, सो यू हैव टू क्रिएट द मॉडल ऑफ योर चॉइस। अब ये रेफरेंस किसके लिए दिया है? अगर किसी को चॉइस ही नहीं है, ठीक है, if you don't have any choice then you can model this reference। ठीक है, क्रिएट एन एक्सटीरियर मॉडल ऑफ योर चॉइस, प्रॉपर टेक्सचर्स एंड लाइट्स। अभी मैं भी आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है? अभी मुझे ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, सर ये कैसे करना है, कैसे करना है, सबमिट कैसे करना है।
each and everything is written in this. Please read this, please. I'm requesting you all to read all of the instructions before asking any doubts. ठीक है, ये मैंने ऐसे टाइम पास के लिए क्रिएट नहीं किया है पेज, ठीक है। अभी काफी सारे लोग पूछ रहे थे कैसे सबमिट करना है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट क्रिएट अ स्क्रीनशॉट और सेव द स्क्रीन विद at least 3 different angles, front, side, top and etc. Combine the output files in one single PDF file only and submit it to the Google Classroom. इसका मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? आप लोग ही बताओ चलो, नहीं तो मेरे लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो गया रहेगा ऐसे लग रहा है। नहीं वो छोड़ दो, वो हो गया, वो क्लियर हो गया। अभी ये बताओ, कंबाइन द आउटपुट फाइल्स इन वन सिंगल पीडीएफ फाइल ओनली एंड सबमिट इट टू द गूगल क्लासरूम। इसका मीनिंग क्या होता है? सर मीन्स सभी जो आपने काम किया है वो सभी असाइनमेंट एक करने का और फिर भेजने का आपको एक पीडीएफ फाइल बना के क्लासरूम पे। हाँ, मतलब जो भी आपका आउटपुट फाइल आ रहा है उस आउटपुट फाइल को आपको कंबाइन करना है सिंगल पीडीएफ फाइल ओनली, ठीक है। एंड देन यू हैव टू सबमिट इट टू द गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम का लिंक मैंने अभी तक दिया नहीं है, जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया था, वो लिंक मैं आपको बाद में क्रिएट करके दूंगा जब सबमिशन का टाइम आएगा, ठीक है। प्लीज रीड दिस, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। आपको कुछ भी डाउट रहेगा, गो थ्रू द लैब बुक, पूरा उसको अच्छे से रीड करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, ठीक है। उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा आपको ऐड नहीं करना है, जितना दिया गया है उतना ही करो, ठीक है। डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स फॉर योरसेल्फ एंड मी आल्सो, ठीक है। ओके, सो वी हैव डिफरेंट मैप्स, वी हैव डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। नाउ आई विल शो यू सम डिफरेंट, इसको साइड में रखता हूं, I'll delete this, I will create a box, okay. Edit poly, सर हाँ सर आपने वो फाइल फॉर्मेट नहीं बताया सर। क्या क्या? फाइल फॉर्मेट नहीं बताया सर। फाइल फॉर्मेट नहीं बताया है? जेपीजी या पीएनजी वगैरह। जेपीजी या फिर पीएनजी, ये क्या है? ये कौन सा फाइल फॉर्मेट? सर इमेज का। इमेज का? हाँ आपको इमेज सबमिट नहीं करना है, आपको पीडीएफ फाइल सबमिट करना है। जब पीडीएफ में स्क्रीनशॉट रहेंगे ना, तो कौन से फाइल फॉर्मेट के स्क्रीनशॉट रहेंगे वो? स्क्रीनशॉट कौन से फाइल फॉर्मेट में आते हैं? सर पीएनजी भी है, जेपीजी भी है। हाँ तो सर कौन सा सबमिट करना है? अरे आपको पीडीएफ फाइल सबमिट करना है, आपको जेपीजी भी सबमिट नहीं करना है, पीएनजी भी सबमिट नहीं करना है। सर फोटोज तो आएंगे ना, पीडीएफ में फोटोज रहेंगे, तो फोटोज कौन से फॉर्मेट के रहेंगे? पीडीएफ में फोटोज रहेंगे तो मैं थोड़े से फोटो एक्सट्रैक्ट थोड़ी ना करने वाला हूँ अपना। ओके सर। उसके अंदर आप लोग जेपीजी डालो, पीएनजी डालो, ईपीएस डालो, टीआईएफएफ डालो, कुछ भी डालो ना, आई वांट दिस पीडीएफ फाइल ओनली। ओके, आपके सेपरेट के लिए आप बोलता हूँ, आप लोग जेपीजी फाइल निकालो और देन डालो। फिर बाद में सब बात में कोई तो मुझे पूछेगा सर मेरे पास से जेपीजी फाइल निकल रहा ही नहीं है, मैं पीएनजी फाइल निकाल सकता हूँ, मैं पीएनजी फाइल सबमिट कर सकता हूँ क्या? देन आई हैव टू आंसर दैट आल्सो। तो और एक बंदा बोलेगा सर मेरे पास पीएनजी फाइल फॉर्मेट नहीं रेंडर हो रहा है या फिर वो रेंडर नहीं करते आ रहा है, आई हैव द ईपीएस फाइल तो दैट आई कैन इनपुट ईपीएस फाइल। वो और एक बंदा पूछेगा मुझे सर मेरे पास पीएनजी फाइल रेंडर नहीं हो रहा है, ईपीएस भी नहीं हो रहा है, जेपीजी नहीं हो रहा है, देन कैन आई रेंडर द टीआईएफएफ फाइल? आई एम नॉट टेलिंग यू हाउ टू रेंडर, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू हैव टू सबमिट द पीडीएफ फाइल। रेंडर आप कैसे भी करो, जो फाइल फॉर्मेट में रेंडर करना है वो फाइल फॉर्मेट में रेंडर करो। You have to submit each and every assignment in a single PDF file only.
ठीक है, यू हैव टू सबमिट ईच एंड एवरी पीडीएफ, ईच एंड एवरी फाइल इन अ सिंगल पीडीएफ फाइल ओनली। अभी इसके अंदर आप लोग ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। अभी आप लोग जैसे आप लोग अभी आप जैसे पूछ रहे हो मुझे अब्दुल, वैसे मुझे तो लग रहा है कि आप सेपरेट सेपरेट जेपीजी फाइल क्रिएट करोगे या फिर पीएनजी फाइल क्रिएट करोगे और हर एक फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके देन यू विल सबमिट फॉर असाइनमेंट नंबर 1, 3-4 फाइल सबमिट करोगे मुझे, या फिर यू विल जस्ट चेंज द एक्सटेंशन डॉट जेपीजी रहेगा तो वहां पे डॉट पीडीएफ करके सबमिट करोगे, वैसे चलेगा क्या? सर मैं आपको एक पीडीएफ में 3 फोटो भेजूंगा ना। हाँ, हाँ वही एक चीज पीडीएफ करना में, है। हाँ एक पीडीएफ में 3 फोटोज भेजोगे आप, तो फोटोज का फाइल फॉर्मेट रहेगा क्या वैसे ही, वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ओके सर। हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कुछ कुछ लोग। ठीक है, लेट द फेस इंसेट, एक्सट्रूड, ठीक है। अभी पीछे का वगैरह मॉडल कर दो आप लोग भी। दिस आई हैव शोन यू आई थिंक, ठीक है, फिर भी मैं फिर से बताता हूँ आपको। प्रेस एम, ये वाला जो रहेगा, अप्लाई सेपरेट मटेरियल ऑफ दिस, आई विल फर्स्ट अप्लाई दिस, ये पूरा रेड हो गया अभी। इसके अंदर मैं मैप अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड, आर्किटेक्चरल, डिफ्यूज, ये ऐसे ही रखता हूँ, यूजर डिफाइन, आई डोंट वांट टू डिफाइन एनी, अप्लाई अ गुड वेरिएशन, ठीक है। डिफ्यूज मैप, बिट मैप, जो भी इमेज रहेगा, अप्लाई दैट इमेज, ओके, आई विल अप्लाई दिस टू दिस। अब ये सेपरेट सेपरेट फेसेस के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो गया है, ठीक है। ऑटोमेटिकली जब आप डायरेक्टली मटेरियल अप्लाई करोगे तो ऐसे ही दिखेगा वो आपका, if you apply any of the material on this it will be seen in this way, ठीक है। So now in this what you have to do, you have to right click, convert to editable poly, ठीक है। This has merged the layers, okay, this has merged the components. Now in this I can apply separate materials, okay. I will just download one good material, okay. First I will apply to the entire thing, ठीक है। अगेन द सेम प्रोसेस, सिलेक्ट द मटेरियल, आर्किटेक्चर में जाओ, डिफ्यूज मैप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करो, then go to this bitmap properties, desktop, material good, apply, okay. See, now this is a wooden material. Now what I will do, I will select a single face,
ठीक है, सिंगल फेस सिलेक्ट करता हूँ, इस फेस के ऊपर आई विल अप्लाई डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप अ डिफरेंट मटेरियल ऑन दिस फेस, ठीक है। इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स अप्लाई करने हैं ऑन सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, स्टैंडर्ड, आर्किटेक्चरल, मैप, मैप, ऊपर, ठीक है। Okay, see, so this is my material. स्टैंडर्ड, हाई क्वालिटी, यहाँ से रेंडर मोड्स आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। डिफॉल्ट शेडिंग, फ्लैट कलर, फ्लैट कलर करोगे तो इसके अंदर आपको कॉपीराइट का एक सिंबल भी है, ठीक है। दिस वे यू कैन अप्लाई दिस ऑन द फ्रेम्स। अभी बाकी जो पार्ट है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें और कुछ डाउट है क्या सबमिशन के अंदर या फिर ये फाइल क्रिएशन के अंदर? बताओ जल्दी फटाफट, चलो, वी हैव 2 minutes मोर so I can explain that. ठीक है, कुछ भी डाउट रहेगा ना तो अभी पूछो आप लोग। और कब पूछना है आपको कुछ डाउट? जब आप लोग ने पूरा इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली रीड किए हैं, लैब बुक भी पूरा रीड किया है, अगर उसके अंदर कुछ मेंशन नहीं है और उसका अगर आपको कुछ डाउट आता है देन यू कैन आस्क, ठीक है। इफ इट इज ऑलरेडी मेंशन इन द लैब बुक देन प्लीज रीड इट, ठीक है, प्लीज रीड इट केयरफुली, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और मुझे भी कंफ्यूज मत करो, मुझे भी ऐसे लगता है कि अरे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं है शायद से लैब बुक में, इसलिए आप लोग पूछ रहे हो मुझे, ठीक है। बट इवन इफ ऑलरेडी ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, वो इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए मैंने सोच समझ के बहुत टाइम लगाया है उसको, कि ऐसे टाइप के डाउट्स रेज हो सकते हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली वो लैब बुक में आपके लिए इजी करके दिया है मैंने, ठीक है। उसके बावजूद भी इफ यू हैव एनी डाउट्स अदर देन दैट देन यू कैन आस्क, ठीक है। डायरेक्ट सबमिशन के पहले ही मत पूछो सर कल तो सबमिट करना है, मैंने ये नहीं हुआ। हाँ हाँ बोलो सर। वो आप कीबोर्ड पे टेक्सचर कैसे अप्लाई करना है वो बता सकते हैं क्या सर, माया में? माया के अंदर क्या? हाँ सर। एक सेकेंड। देखो अभी मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, ठीक है। आई विल शो यू वन टेक्निक, मतलब 3-4 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक कंबाइन करके मटेरियल आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। दैट सेम टेक्निक यू हैव टू अप्लाई ऑन द कीबोर्ड। आई कैन नॉट क्रिएट द होल कीबोर्ड, ठीक है, इन सच लेस टाइम। ठीक है, उसके लिए भी आपको फोटोशॉप यूज करना पड़ेगा। सर आप वो हाउस का मॉडल बताने वाले थे ना? और उसका मॉडल बनाना है क्या? हाँ सर, आप बताने वाले थे सर, माइक से हम आए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है बता दो नेक्स्ट पिक्चर क्या।
सर नेक्स्ट लेक्चर की लिंक आई है। आ गई है क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, सो विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। मुझे सिर्फ याद दिलाओ, जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा ना, तो ये मुझे याद दिलाओ कि मुझे एक्सटीरियर हाउस मॉडल और कीबोर्ड का आपके डिटेल्स बताने हैं, या फिर उसके अंदर जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो क्लियर करने हैं। ठीक है? ओके सर। ओके सर। ठीक है, चलो, कैन लीव। थैंक यू।